spent how much money. So basically in 2014 there were all scheduled flights only operating from Guwahati and Kolkata. But at present, we are operating destinations from Agartala to Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad, Imphal, Kolkata, Guwahati. I can tell you in 2014-15, the number of passengers traveled is 8 lakh. Now in 2025-26, 15 lakh passenger traveled from this airport. This means almost double. If we talk about the aircraft movements, in 2014 the aircraft movement total was 6,500, which has increased to 11,000 in 2025-26. If we talk about the cargo was Ministry of Civil Aviation based on the vision of Honorable Prime Minister under the leadership of Honorable Minister of Civil Aviation. We are going to celebrate Yatri Suvidha Divas on 15th June 2026 at how this Maharaja Bir Bikram Airport has developed, has created infrastructure, has provided increased the facilities for the passengers. I am going to tell you briefly about that, and then we will also discuss about what all the amount or the Airports Authority of India has spent how much money. So basically in 2014 there were scheduled flights only operating from Guwahati and Kolkata. But at present, we are operating destinations from Agartala to Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad, Imphal, Kolkata, Guwahati. I can tell you in 2014-15, the number of passengers traveled is 8 lakh. Now in 2025-26, 15 lakh passenger traveled from this airport. This means almost double. If we talk about the aircraft movements, in 2014 the aircraft movement total was 6,500, which has increased to 11,000 in 2025-26. If we talk about the cargo was used to be 2,000 metric tons in 2014. Now it has increased to 6,000 metric tons. We have a cargo terminal building capacity of 40,000 metric tons. 40,000 metric tons. Now this comes, we have developed the terminal building by creating in 2022. In 2022, this new terminal building was inaugurated by Honorable PM on the 4th of January 2022. This airport new terminal building has started. Now if we talk about the difference between the new building and the old building capacity was only 8 to 10 lakh passengers handling per annum. Now it is 30 lakh passengers annual capacity building we are having. 30 lakh, 3 million passengers annual capacity can be handled now. If we talk about the facilities in the new terminal building, which means we can say like number one,
we have started Digi Yatra. Digi Yatra means it is a facility for the passengers. They can upload all the details in the app. They can come to the airport. It is a paperless, seamless travel. Need not to show any identity card at any stage. Simply you have to show your boarding, scan your boarding pass, all details will be verified, your gate will be open, you can straightway go inside building, and then you can complete the, even inside security hold area also you can enter by just showing your face. So this is a facility we have started here. What I am trying to say, at MBB Airport, Agartala, we have all the latest passenger facilities which a passenger finds at a metro or an international airport. This airport is having all facilities. Now I am talking, if after Digi Yatra, when you come inside building, the passengers which are first time travelers or which don't know the process of the airport, where to do the check-in, where should I get my boarding pass, where should I give my registered baggage. For this we have one service known as May I Help You. May I help you? The staff is available. They are guiding the passengers, they are informing the passengers, they are helping the passengers. And for your information, that service is free of cost. These staff are not taking or charging anything, just helping the passengers. Suppose the passenger doesn't know English, no problem, because Honorable Prime Minister vision is हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे. So we are giving full honor, full respect to each and every passenger who is coming to our airport, whether he is knowing English or no, whether he is knowing the process or no, we are helping him. Just by after doing the check-in, we are having, there are 20 check-in counters here. Facility, the passenger need not to stand in the line, in the queue. He should not wait in the queue. Then afterwards, when you go to security hold area, there are 4 hand baggage X-ray machines. My target at this airport, the passenger should spend minimum time in the queue. He should immediately complete the process and go to and see his boarding gate. That is the main. Now, when we talk about the Suvidhaएं, the main focus of 15th June function is यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं. If we talk about that, then if we move further, there are aero bridges. The passengers may be on wheelchair, maybe a divyang, or maybe old age passengers unable to climb the bus, unable to climb the stairs of the aircraft. For that, we have 4 aero bridges here, and we are implementing almost 100% flight operations from aero bridge at Maharaja Bir Bikram Airport, Agartala. Because what, and this is an addition. This is upgradation of the infrastructure from old building. Old building we don't have the aero bridges. So these are the new additions which come up in the new terminal building. So afterwards these are the facilities. Afterwards, when you come as an arrival passenger, we have 4 conveyor belts. The passenger need not to wait for his baggage, to collect his baggage. Immediately the baggage is delivered. उसके लिए भी हमने टारगेट फिक्स किए हैं. 7 to 10 minutes after the aircraft lands, the baggage should be delivered to the passenger. We are targeting that. So each and every stage, the focus is on the passenger. Focus is to improve the services. Focus is how to give the best experience to the passenger.
what we are trying, the passenger should carry a good impression about Agartala, about Tripura, about our culture, and they should happy to spend time at the airport. They should feel happy and they should carry good memories from Agartala, Tripura. This is my intention to take care of the passengers as our guest. I am trying my best to give that impression. Those who are visiting, they should tell to their friends and relatives, you do visit to Tripura, do visit to Agartala. In future, what I am looking, this Tripura, Agartala is going to have more and more tourists, more and more good quality passengers, those who like to spend money. As you have seen, new hotels are coming, big hotels are coming. So it means that will draw a economy, that will boost the economy of Tripura in total. So airport is going to contribute in a great in that manner. So we are ready for 24 hours operations also. Last time also I said we are ready. This airport is capable of functioning 24/7. As the airlines comes, will show the interest in file the flight plans for the night flights. We are ready. This airport is having all the night facilities, night landing facilities, capable of handling the flight operation 24/7, capable of handling the operations for international flights also. हमारी इस बिल्डिंग के अंदर इंटरनेशनल ऑपरेशंस का प्रोविजन ऑलरेडी है. इमिग्रेशन, कस्टम्स के काउंटर्स, सेपरेट अराइवल, सेपरेट डिपार्चर, everything is available in our this building. So we are ready. Technically we are ready for the operations. इसके बाद में और अच्छा और कुछ इसके फैसिलिटीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ फ्री वाईफाई की फैसिलिटी है. एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर फ्री वाईफाई की फैसिलिटी है. फिर हमारे यहाँ सेल्फ चेक इन मशीन्स लगी हुई हैं. यू नीड नॉट टू गो टू द एयरलाइन काउंटर. You can finish your check-in, take your boarding pass and straight away go to security hold area. Even हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं. चाइल्ड केयर रूम आल्सो वी हैव प्रोवाइडेड. पैसेंजर्स को उसकी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कोई मदर फीड करना चाह रहे हैं अपने बच्चे को. सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन तक हमने ध्यान रखा है कि माताओं बहनों को कोई दिक्कत ना. So this kind of we are going in the details. ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पैसेंजर्स को, हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई भी हवाई अड्डे में तकलीफ नहीं होनी चाहिए. We are going into the details. अब इसमें एक और फैसिलिटी आपको मैं बताऊं सर. हमने यहाँ एक उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत करी है. हाँ, this means what? This means a passenger doesn't want to spend more money. तो आप देखिए 20 रुपए का समोसा, 10 रुपए की चाय, 20 रुपए की स्वीट और 10 रुपए की पानी की बोतल. विद इन 50-60 रुपीज यू कैन हैव ए लाइट ब्रेकफास्ट. स्नैक्स आपको हो सकते हैं 50-60 रुपीज. दिस इज द ऑनरेबल पीएम्स विजन की. लोगों का इंप्रेशन रहता है एयरपोर्ट के अंदर हर चीज बहुत महंगी मिलती है. उसी को, उस मिथ को हटाने के लिए वी हैव स्टार्टेड उड़ान यात्री कैफे. and this is good success. People are using it. People are using frequently and they are happy that this service is available. And this service is available, I think 34 airports in India. Is one of that is Agartala airport. इनिशियली मैंने कहा था अगरतला एयरपोर्ट में सारी सुविधाएं वो हैं जो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखते हैं. तो उसके बाद में इवन स्मोकिंग लॉन्च की फैसिलिटी भी हमने दी है. प्रेयर रूम की भी दी है कि किसी को मान लो पूजा करनी है, किसी को नमाज पढ़नी है तो दे कैन डू इट. दैट इज आल्सो देयर. CIP लॉन्च, जो कोई मीटिंग करना चाह रहा है
private lounge, every MI room, food court, EV charging also we are providing. Avsar outlet. Avsar outlet is promotion to the self help groups. उसके लिए कि जो जो त्रिपुरा के लोग हैं, त्रिपुरा के जो ट्राइब्स हैं, जो अपना लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको एक शोकेस करते हैं, उसको एयरपोर्ट के अंदर आप बता सकते हैं कि ये हम प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड इट इज ए गुड सक्सेस। तो ये है सर। और इसके बाद में हमने किड्स जोन स्टार्ट किया है, बच्चों के लिए भी स्टार्ट किया है। और इवन एक लाइब्रेरी, मतलब there is a bookshelf. You can read the books, you can take the books and then destination पे उस बुक को आप अराइवल में रख सकते हैं। इस प्रकार से एक बुक्स का रोटेशन हमने बनाने की कोशिश की है सारे हवाई अड्डों के ऊपर। So that is also a good initiative by Honorable Civil Aviation Minister. We have to start this. So we are doing. अभी आपको मैं बताऊं, देखिए जैसे हवाई अड्डे की महत्वता, कोविड-19 में पूरी दुनिया बंद हो गई थी, हवाई अड्डा एक दिन भी बंद नहीं हुआ। हमारे स्टाफ, हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, ऑपरेशंस के आदमी, सभी हवाई अड्डे को एक दिन भी बंद नहीं होने दिया। व्हाई? बिकॉज वी आर कमिटेड टुवर्ड्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मेडिकल सप्लाई, सारी एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज एयरपोर्ट से करवाई गई। This is a big commitment towards the our citizens. अभी आप देखिए, एक और आप लोगों ने बहुत ट्रेवल करते हैं, चीज नोट करी होगी, फ्लाइट लेट हो जाती है। फ्लाइट लेट होती है तो हमारे जैसे यहाँ अभी ऑपरेशंस हमने वॉच आवर्स रखे हुए एयरपोर्ट की फंक्शनिंग के 8:30 बजे तक, बट अदर एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट की वजह से वो कहते हैं हम रात को 10 बजे को फ्लाइट ऑपरेट करेंगे, हमने 11 बजे तक भी एयरपोर्ट खोल के रखते हैं, जिससे कि पैसेंजर्स एटलीस्ट डिले से अपने घर तो पहुंच जाएगा, नेक्स्ट डे तो अपनी जर्नी अपनी काम कर पाएगा। वी आर कमिटेड टू दैट। वी आर एक्सटेंडिंग दी वॉच अप टू 11 बजे तक, 12 बजे तक भी करते हैं, जब तक हमने एयरलाइंस को ये कह रखा है डोंट कैंसिल द फ्लाइट। आपका एयरक्राफ्ट की ग्राउंड हो गया, एयरक्राफ्ट टेक्निकल हो गया, एयरक्राफ्ट चेंज करने में टाइम लग रहा है। आपको मैं बताऊं, एक दिन अभी 10-15 दिन पहले 7 बजे 7 o'clock का डिपार्चर यहां से था कलकत्ता के लिए। द एयरक्राफ्ट टुक ऑफ एट 11:30 इन नाइट। फिर भी हमने 11:30 तक वॉच खोल के रखा। हमने कहा नो, फ्लाइट आप कैंसिल मत कीजिए, आप फ्लाइट लेके आइए, हम एयरपोर्ट आपको फंक्शनिंग करके देंगे जितने बजे तक आप चाहते हैं। तो दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट वी आर शोइंग। अभी हमारा टोटल फोकस पैसेंजर्स के ऊपर है। पैसेंजर्स को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। इवन जब पैसेंजर्स फ्लाइट के लिए वेट करता है, हमने कह रखा है कि सारी फैसिलिटीज, फूड, एयर कंडीशनिंग, एवरी ऑल फैसिलिटीज एट द एयरपोर्ट विल फंक्शन। कोई दुकान बंद करके नहीं जाएगा। पैसेंजर को कोई भी चीज चाहिए, वो उसको जब तक वो फ्लाइट बोर्ड नहीं करे जब तक वो मिलनी चाहिए। वी आर टोटली कमिटेड एंड दीज इज द डायरेक्शंस फ्रॉम मिनिस्टर, फ्रॉम मिनिस्ट्री, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट और पुटिंग द विजन ऑफ ऑनरेबल पीएम ऑन ग्राउंड। वी आर जस्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। एक हमने यहाँ इनिशिएटिव लिया है ग्रीन एनर्जी का। ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव, ये एक मतलब हाउ टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। सर, कार्बन एमिशन हमें रिड्यूस करना है। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू अचीव है, ultimately we are going to bring a zero carbon emission। अच्छा, अभी हम अगरतला एयरपोर्ट के बारे में बताऊं, 2019 में यहाँ 250 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया गया, जिससे कि 2,20,000 यूनिट बिजली पैदा हुई।
2026 में हमने 60 किलोवाट और लगाया गया, इससे 76,000 यूनिट्स बिजली पैदा हुई। 2027 तक हमारा टारगेट है 1600 किलोवाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे क्या होगा 21 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी सोलर। उससे हमारे को फायदा क्या होगा, एयरपोर्ट को 26-27 में हम करीब 2 करोड़ रुपए बिजली का खर्चा रिड्यूस कर पाएंगे एक साल में, बाई जनरेटिंग 22 लाख units after 2027 March. Already this is in process and we are going to start it by 2027 March. So ये इससे क्या होगा कि, और इसमें हमने एक अचीवमेंट प्राप्त किया है, 2025 से अगरतला एयरपोर्ट में हमने ग्रीन एनर्जी टैरिफ भी लागू कर दिया है। ये ग्रीन एनर्जी टैरिफ से ये होता है मतलब कि we are buying the energy only from green energy sources only. हमने ये मना कर दिया कि कोयले से और डीजल से पैदा करी बिजली हम नहीं खरीदेंगे। So this is an agreement and we have achieved it. अगरतला एयरपोर्ट ने साफ, हरे भरे और स्वस्थ वातावरण में योगदान के लिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। So ग्रीन एयरपोर्ट इनिशिएटिव में भी अगरतला एयरपोर्ट पीछे नहीं है। वी आर टेकिंग ऑल एक्शंस ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। अब आप, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वी कैन। सर, पिछले साल इसी समय गुजरात में जो हादसा हुआ था, वो फ्लाइट का एयर इंडिया का जो घटना हुआ था, तो इन दौरान ये एक साल में वो सिक्योरिटी वगैरह के लिए क्या इनिशिएटिव अपडेट किया गया है? सर, वो जो आप जून 6 अहमदाबाद क्रैश की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी DGCA की फाइंडिंग्स आई, उस फाइंडिंग्स में जो steps to be taken at airports or airlines, major आप देखें that they were talking about the airline, क्योंकि aircraft successfully took off from the airport, then there was some issue in the aircraft and aircraft goes down. So airport wise there was no you can say there was no problem. Runway was okay, all facilities at the airport were functioning nicely, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, एयरलाइंस के लिए रेस्ट्रिक्शंस, उनके सेफ्टी मेजर्स के ऊपर गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस DGCA की आई, जो कि एयरलाइंस इंप्लीमेंट कर रही हैं। हमारा कार्य क्षेत्र एयरपोर्ट तक है। सर, मेरा 2 क्वेश्चन। जी, 15 जून के बारे में कोई प्रोग्राम शेड्यूल है? हाँ जी, यस यस। दूसरा है कि हमारा MBB एयरपोर्ट ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग क्या है? अच्छा, मैं बताता हूँ। हाँ, थर्ड वन इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट टॉप हम लोग मिलेगा हमारे। करेक्ट। सर, मैं बताता हूँ आपका व्हाट ऑल एक्टिविटीज वी आर प्लानिंग फॉर जून पर्टिकुलर दिन। सर, उसके लिए नंबर 1, मॉर्निंग वी आर गोइंग टू ग्रीट द अराइविंग पैसेंजर्स बाय पुटिंग तिलक लगाएंगे, प्लस जो व्हील चेयर पैसेंजर है, जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़े एज्ड है, उनको रेशा पहना के उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद में अराइवल और डिपार्चर में हमने कल्चरल प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें कल्चरल इन द सेंस लोकल फोक सॉन्ग्स के, जैसे होजागिरी डांस है, इस प्रकार के बंगाली डांस है, इस प्रकार के डांस है। उसके बाद में हमने एक हेल्थ चेकअप का भी प्रोग्राम रखा है, जो ड्राइवर्स और अपने लोडर्स जो भी उसमें करवाना चाहिए। फिर हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है, वो भी एक प्रोग्राम रखा है कि जो ब्लड डोनेशन करना चाहे वो कर सकता है।
इसके बाद में हमने बच्चों का, जैसे कोई पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे उनको एक थीम देके ड्राइंग कंपटीशन, सिक्योरिटी होल्ड एरिया में ड्राइंग कंपटीशन भी उनका करवाएंगे। और उसके बाद में हमने एक प्रोग्राम रखा है, वंदे मातरम सॉन्ग हम करेंगे नेशनल फ्लैग के साथ नीचे, वो भी एक प्रोग्राम रखा है वंदे मातरम का भी। इसके बाद में शाम के टाइम फिर से कल्चरल प्रोग्राम बिल्डिंग में रखा है। तो इस प्रकार से ये पूरे दिन की फुल डे एक्टिविटीज रहेंगी उस दिन। और एक सेल्फी पॉइंट भी बना रहे हैं। कितने बजे शुरू होगा? ये सुबह सर फर्स्ट फ्लाइट से स्टार्ट होगा, लास्ट फ्लाइट तक चलेगा। मतलब यू कैन से 8-9 बजे से स्टार्ट होगा, 8-9 बजे तक रात को चलेगा। डिफरेंट सेरेमोनियल की प्रोग्राम होगा, फिर मिनिस्टर आएगा वैसे भी? नहीं सर, हाँ फुल डे प्रोग्राम। फुल डे प्रोग्राम। इसमें एक और है, हमने ये भी रखा है जो हमारी वुमेन फोर्स है उसमें उनको सम्मानित करना, वुमेन फोर्स को सम्मानित करना जो अच्छा काम कर रहे हैं, को चाहिए क्लीनिंग स्टाफ हो, चाहिए वो किसी भी ऑपरेशंस का स्टाफ हो, किसी भी एयरपोर्ट के किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, वुमेन फोर्स का उनको सम्मानित करना, ये भी एक प्रोग्राम रखा है टू आइडेंटिफाई एंड टू ऑनर देयर सर्विसेज। ठीक है सर? हाँ सर। नेशनल राइटिंग कंपटीशन, रैंकिंग, अच्छा रैंकिंग। हमारे एयरपोर्ट की रैंकिंग ऑल इंडिया एयरपोर्ट में ये 1.5 मिलियन कैटेगरी को, मतलब 1.5 मिलियन कैटेगरी क्रॉस कर गया है। तो ये कैटेगरी 3 में आता है ये एयरपोर्ट, एंड इट इज रैंक 4th और 5th रैंक है ऑल इंडिया। वी आर डूइंग गुड, ऐसी बात नहीं है। एंड इन फ्यूचर आने वाले समय में वी आर गोइंग टू गेट नंबर 1 आल्सो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इंक्रीज दैट सर्विसेज। बेंगलुरु एयरपोर्ट में मैंने देखा था सर, रैंक 1 लिखा हुआ है बोलो। राइट। वो सर एक मैं बताना चाहूँ, एशियाई की रेटिंग्स होती हैं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल होता है जो वर्ल्ड ओवर एयरपोर्ट्स को स्टडी करता है और फिर रैंकिंग करता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी देखा होगा आपने, आईजीआई एयरपोर्ट पे भी लगा रहता है। वो हर साल सारी चीजों को स्टडी करते हैं। अलग अलग कैटेगरीज है, कैटेगरीज डिफाइंड होती है, कितने पैसेंजर्स पे ट्रेवल कर रहे हैं। इंटरनेशनल मैंने जैसे कहा सर, वी आर रेडी, दिस एयरपोर्ट इज रेडी, ओनली द एयरलाइन हैज टू कम फॉरवर्ड एंड से दैट वी वांट टू स्टार्ट द इंटरनेशनल ऑपरेशंस फ्रॉम अगरतला, वी आर रेडी। What about the customs and other security? Those are all infrastructure is ready. no, Staffs will be deputed as the airlines file a schedule. No, I'm not talking about. It is available. It is available. Because there was a message from the Home Ministry about the security person from Tripura Police would be deputed. Yes, sir. Yes, sir. That has been. Yes, sir. Yes, sir. It is. Everything is in place. And they just now, I think 10-15 days back, immigration persons from Kolkata and Delhi visited the airport. These are continuously in touch. You are ready to? We are ready, sir. Infrastructure wise, we are ready. So you have mentioned in that job creations. Yes, sir. Yes, sir. How many jobs are created in Agartala airport? सर इसमें जॉब्स का, अगर आप सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन jobs are created indirectly. So यहाँ ऑलमोस्ट अगर आप सभी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें जिसमें एयरलाइंस हैं, लोडर्स हैं, एयरपोर्ट है, क्लीनिंग स्टाफ है, एवरीथिंग, इट इज मोर देन 1000। हाँ सर, ये कार्गो जो किसानों के लिए खुद जो फैसिलिटी है, कैसा, मतलब आपको पता है कि कैसा, कितने परसेंटेज में जाता है और क्या क्या जाता है त्रिपुरा से? सर मोस्टली जाता है मेडिसिन्स, फ्रूट्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, इवन येलो मटेरियल भी जाता है, यहाँ से काफी जाता है। तो लाइक मतलब
डाइवर्सिफाई है। बट जैसे अभी सीजन पाइनएप्पल का, पाइनएप्पल खूब जा रहा है, जा रहा है, क्योंकि कार्गो का कॉस्ट आप पर केजी के हिसाब से देखें तो 10 रुपए आता है, 15 रुपए आता है, या 60 रुपए में एक पाइनएप्पल वहां जाके 100 रुपए में बिकेगा तो 70 रुपए, फिर भी 30 रुपए उसके पास बचेंगे। इफ यू सी दी बिजनेस इट कम्स लाइक दैट। इवन वेजिटेबल्स बहुत जा रहा है यहाँ से। फिर आपका ये इवन काफी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसके ऑर्गेनिक के ऊपर भी काफी स्ट्रेस है। मतलब people are taking lot of things from here. उल्टा जा रहा है उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, you are right. उल्टा जा रहा है। डीजी यात्रा ओनली 8%। सर उसको इंक्रीज कर रहे हैं हमने। उसके लिए क्या किया है कि वी आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। अभी 8% नहीं, ये 10% के करीब पहुंच गया है। अभी टोटल पैसेंजर आप देखेंगे तो टोटल पैसेंजर पर डे डिपार्चर में 2500 से 3000 पैसेंजर जा रहा है, 2.5 से 3 आ रहा है। तो 2.5 का 10% आप देखें तो 250-300 पैसेंजर यूज कर रहे हैं। तो इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। उसके लिए हमने क्या किया, बाहर स्टैंडीज लगाई और वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू रिक्रूट स्टाफ। हाँ, जो वो बिजी बडी, तो दे व्हाट दे विल डू, दे विल डाउनलोड योर ऐप एंड दे विल टेल यू हाउ टू डू इट। 5 मिनट का काम है। You download the app and scan your boarding pass in that, give your data, then straightly you can go inside. So we are in the process of increasing it. We have to कुछ एयरपोर्ट में तो 30% तक भी पहुंच गया है। 30-35% लोग यूज कर रहे हैं अभी। सर अभी डेली आप लोग का कितना फ्लाइट्स ऑपरेशन कर रहे हैं? एक दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोयलाशहर एयरपोर्ट को लेकर कुछ दिन पहले आप और आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कि चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं, खास करके टेक्निकल टीम्स के बारे में भी बताया और रिव्यू मीटिंग्स भी लिया। आगे का क्या इसका नतीजा है? और तीसरा है, अभी वेस्ट एशिया जो क्राइसिस है इसमें अगरतला एयरपोर्ट में कुछ इम्पैक्ट पड़ा है कुछ या? पहला क्वेश्चन क्या था आपका? अभी कितना ऑपरेशन है? ऑपरेशन हमारे यहाँ 17 अराइवल, 17 डिपार्चर, 34 मूवमेंट्स एवरी डे वी आर ऑपरेटिंग हियर। और कोयलाशहर को कैलाशहर एयरपोर्ट नो डाउट स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है, वी लाइक टू ऑपरेशनलाइज इट। उसके ऊपर कंटिन्यूअसली काम भी हो रहा है और इवन वी आर टॉकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग दी लैंड। एक्चुअली हाँ, फर्दर लैंड एक्विजिशन, वो उसका पर्पज है लैंड एक्विजिशन का कि if we want to operationalize an airport, it should be a all weather airport, and for all weather airport means that is IFR airport, we call it as instrument flight rules airport। तो IFR एयरपोर्ट के लिए क्या होता है, जैसे आपका विजिबिलिटी कम रिड्यूस होती है, सपोज 5000 से ड्रॉप होके 4000, 3000, 2000, at that time the aircraft should able to land safely। So to have that all weather airport, we have requested the state government to give 205 acres of land। 205 acres of land ki we are requesting it। Then after that we will operationalize it। The Airport Authority of India is ready। और वेस्ट एशिया जो क्राइसिस है, वेस्ट एशिया क्राइसिस में अगरतला एयरपोर्ट एज सच नंबर ऑफ पैसेंजर्स में नो इफेक्ट। पहले भी हमारे यहाँ 5000 के पैसेंजर्स अराइवल डिपार्चर मिला के होता था, अभी भी वही हो रहा है। इनफैक्ट वी आर इंक्रीजिंग, हमारे यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है। तब यहाँ का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, ट्रेंड इज एनकरेजिंग, ट्रेंड इज पॉजिटिव। यहाँ पैसेंजर्स की जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैसेंजर्स आर इंक्रीजिंग, एंड it is the development is also on visible। बांग्लादेशी पैसेंजर तो कोई इम्पैक्ट हुआ होगा अभी सर इतना नहीं, बट अभी धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने के बाद में दे स्टार्टेड कमिंग, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है अभी। Sir, out of this, the passengers you have said is 2025 is around 15 lakhs. Yes, sir. So, do you have any data? How many of them are from Bangladesh? Because Bangladesh region they use our airport for Correct. going to other parts. Do you have any Correct. data? What is the percentage device? सर इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि व्हाट यू आर आस्किंग, इफ वी आर ऑपरेटिंग एन
इंटरनेशनल ऑपरेशन, तो स्ट्रेट वे वो डाटा आपके पास सामने आ जाएगा। बट यहाँ वो एज ए डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। You got my point? तो सेग्रीगेट करना मुश्किल है, बट स्टिल वी कैन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है सर कितने पैसेंजर आ, क्योंकि दे आर कमिंग थ्रू लैंड पोर्ट से आ जाते हैं, और फिर हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। You can see into when the prices were there in Bangladesh, there must have been some reduce because the visas and yes, sir. at that time was there some reduction? रिडक्शन हुआ सर, कितना percent? रिडक्शन Average, it's not very official, but we can understand. मतलब उसमें क्या था ना कि दिल्ली यहाँ से मेरे को जो बताया गया कि 300 से 400 पैसेंजर रोज ट्रेवल कर रहे थे, वो रिड्यूस होके 50 तक 40 तक ऐसे आए। अभी फिर से स्टार्ट पिकिंग अप। सर नया फ्लाइट्स का कोई प्रपोजल है? नया फ्लाइट्स नया फ्लाइट्स का एट प्रेजेंट तो नहीं है, नई डेस्टिनेशन हम ऐड कर रहे हैं। उसके लिए जैसे अभी जयपुर से स्टार्ट किया, एंड आई एम ट्राइंग दैट एक फ्लाइट डायरेक्ट मुंबई का स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, मुंबई टू अगरतला इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आप देखें त्रिपुरा के काफी लोग मुंबई में हैं जो कि वाया कलकत्ता ऐसे आना पड़ता है। डायरेक्ट फ्लाइट का होगा तो इट विल बी ए गुड इंटरेस्ट। सर नई फ्लाइट के बारे में कोई डेवलपमेंट? नया ऑपरेटर तो कोई नहीं है, इन्हीं एयरलाइंस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दे शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ द डेस्टिनेशन। जयपुर स्टार्ट हो गया सर अराउंड 1 मंथ बैक। हाँ, जयपुर टू मतलब एयरक्राफ्ट इज डायरेक्टली नीनो टू चेंज द एयरक्राफ्ट। हाँ, सेम एयरक्राफ्ट सेम मशीन इज ऑपरेटिंग। एवरी डे दे आर ऑपरेटिंग इंडिगो से। सर बागडोगरा वाला भी कंटिन्यू कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है। बागडोगरा तो अच्छा है, उसमें काफी लोग यहाँ से बागडोगरा डायरेक्ट। शिलोंग का क्या बंद है? शिलोंग वाला बंद पहले तो था सर। मतलब वो उन्होंने वो रिड्यूस करते रहते हैं ऑपरेशन से, डिपेंड अपॉन द लोड, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। एक ये थोड़ा सा इन्होंने जो आपने असर बताया था ना कि वो उसका वेस्ट एशिया वाला, उसमें ये असर हुआ कि एयरलाइंस ने 1-2 फ्लाइट रिड्यूस करने की किया है, एक फ्लाइट या कहीं कम की है, वो वीकली करने, बट नंबर ऑफ पैसेंजर्स में रिडक्शन नहीं हुआ है यहाँ। इस एयरपोर्ट का मैंने देखा कि फ्लाइट 17 ऑपरेट कर रही हैं, उस दिन भी पैसेंजर 5000 के करीब हैं, और 16 किया तो भी वो है, 15 किया तो भी वही है। नंबर ऑफ पैसेंजर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 5000 के आसपास। सर अभी त्रिपुरा में कितने फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं? 17 कौन सा सर रूट में ज्यादा है? कोलकाता मोस्टली कोलकाता है, और आपका गुवाहाटी है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, इस फ्लाइट्स में ऑपरेटिंग। सर अगरतला से डायरेक्ट फ्लाइट कितने हैं? डायरेक्ट आपकी देखिए गुवाहाटी है, कोलकाता है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, दिल्ली है, बागडोगरा है, काफी है। तो और भी इंक्रीज हो जाएंगी। चेन्नई के लिए कोई फ्लाइट नहीं है क्या? अगरतला से तो सर चेन्नई की रिक्वायरमेंट है, बहुत ट्रीटमेंट के बाद जाते हैं। यस सर, यस इट इज रिक्वायर्ड है, वो भी चेन्नई और मुंबई दोनों रिक्वायर्ड है। मुंबई का तो पहले था, होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সরষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই, রান্নায় তোমাকে চাই।